آج پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل ریجن کوئٹہ سٹی ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی جانب سے ایک شاندار ورکر کنونشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کی لیڈرشپ اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس ورکر کنونشن کے مہمان خاص پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل MNA عامر محمود کیانی صاحب تھے اور وزیر اعظم عمران خان کے کوآرڈینیٹر احمد خان نیازی صاحب اسپیشلی اسلام آباد سے اس ورکر کنونشن کے لیے تشریف لائے تھے، جس میں پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے کوئٹہ سٹی کے کلاودلا سے چمن سے تمام ورکروں نے بھرپور شرکت کر کے اس محفل کو، اس ورکر کنونشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آخر میں مہمان گرامی نے ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی کوئٹہ سٹی ڈسٹرکٹ کوئٹہ سینٹرل ریجن کی تمام لیڈرشپ، خاص کر آصف ترین کو اس کامیاب ورکر کنونشن منعقد کرنے پر مبارکباد دی۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما سینٹرل ریجن ڈسٹرکٹ کوئٹہ سٹی ڈسٹرکٹ کلاودلا ڈسٹرکٹ پشیر ان کے منتخب کیا گیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکریٹری عامر محمود کیانی صاحب اور وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر احمد خان نیازی اور سٹیج پر تمام سینئر قائدین کے اعزاز میں منعقد کیا ہے۔ اور آج کے مہمان خاص مرکزی جنرل سیکریٹری عامر محمود کیانی اور وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر احمد خان نیازی اور سٹیج پہ سینئر قائدین کو مہمان خاص، ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پینڈال میں بیٹھے ہوئے تمام کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک خوبصورت ورکر کنونشن منعقد ہوا ہے، اور سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آج کا جو خوبصورت ورکر کنونشن ہے یہ آپ لوگوں نے بھرپور جذبے کے ساتھ، بھرپور نعروں کے ساتھ اور بھرپور ولولے کے ساتھ منانا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ڈسٹرکٹ پشیر کے جنرل سیکریٹری صحبت خان پروکار ورکر کنونشن کے مہمان خاص مرکزی جنرل سیکریٹری جناب عامر محمود کیانی صاحب، وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر جناب احمد خان نیازی صاحب، اور ہمارے کوئٹہ ریجن کے صدر ڈاکٹر منیر بلوچ صاحب، جنرل سیکریٹری عبدالباری بڑے صاحب، اور تمام پینڈال میں موجود ورکروں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ بعد السلام گرانڈ صدر عامر محمود کیانی صاحب، میں آپ کو اپنے ڈسٹرکٹ کی طرف سے کوئٹہ کی زمین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب اسٹیٹ کی طرف سے یہ اطلاع دیا گیا ہے کہ تقریر مختصر ہونی چاہیے۔
जनाब कियानी साहब, जिस तरह एक हुकूमती पार्टी की तंजीम के रोल होना चाहिए, सूबे में बदकिस्मती से हमारी तंजीम का वो रोल नहीं है जिस तरह की हुकूमती पार्टी की होती है। उसकी असल वजह ये है कि हमारी सियासी पार्टी जो हमारे सूबे में हमारे इसके साथ हुकूमत है, वो तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह नहीं चल रही जिस तरह इत्यादि पार्टी एक दूसरे के साथ चलती है। तंजीमी लेवल पे कारकुन हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास मसाइल के अंबार लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे नुमाइंदे, चाहे वो अपने पार्टी के या हमारी इत्यादि है, वो हमारी किसी की एक कारकुन के वो जायज मसले भी आज सुन नहीं रहे। अहमद नियाज़ी साहब और उनके साथ हमारे सिर्फ चंद सीनियर करेंगे। तो मैं मीडिया टॉक के लिए आमिर कियानी साहब, अहमद खान नियाज़ी साहब, सरदार खालिद हुसैन वर्दक साहब, डॉक्टर मुनीर बलोच साहब, बारी बड़ेज साहब, सैफुल्लाह टाकस और बिस्मिल्लाह आबाद से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग स्टेज पे डाइस पे आ जाए। शुक्रिया। मिल के रो रहे हैं और इसलिए रो रहे हैं कि वो अपना हिसाब किताब नहीं देना चाहते। और ये आप सब जो यहाँ बैठे हैं, ये आपकी काविशों और कोशिशों का नतीजा है। इमरान खान साहब अकेले कुछ नहीं है, आप उनकी टीम है, आप उनके बाजू हैं, आप उनके बाजू हैं जिन्होंने उनको मजबूत किया और यहाँ तक लेके आए। और मैं अपनी तमाम भाइयों को ये भी कहूँगा, यहाँ जो वर्कर्स बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारी बहनें और बेटियाँ बैठी हैं, अभी हम उस जगह पे, इस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे इंशाल्लाह हम एक टेक ऑफ पोजीशन में होंगे। यहाँ बिल्कुल इंशाल्लाह मैंने आपको चीज़ें बताई जो इंटरनेशनली प्रूव हो रही है कि हमने जो गवर्नमेंट के इंतजामात थे सही चलाए। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें इंप्रूव होंगी। और मीडिया से कोई क्वेश्चन है तो मैं चाह रहा हूँ कि वो पूछते हैं, क्योंकि मीडिया में उन्होंने शायद जाना भी होगा। सर ये बताइएगा कि सबसे पहले आप आए, आपने कहा बाय रोड हम आए, बलूचिस्तान की सूरत हाल आपने देखी, वर्कर्स की और बलूचिस्तान की सूरत हाल इस वक्त आप लोगों के सामने कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। वर्कर्स भी काफ़ी मायूस है और बलूचिस्तान भी आपसे काफ़ी मायूस है। जो वादे वहीद किए गए थे, क्या आप बताएंगे कि उस पर अमल दरामद को कितना वक्त लगेगा? देखिए जी, मैं इमरान खान के जो वर्कर को, टाइगर को जानता हूँ, वो तंग हो सकते हैं, मायूस नहीं हो सकते। कि 25 साल से जो लीडर खड़ा होता है वो मायूस ना, वो खुद होने लगती है तो मायूस होने देगा। हाँ, हालात खराब थे, लेकिन अगर आप ये कहें, अगर मैं किसी को हम 10 करोड़ देंगे कि ना कि मकान एक साल में बना दो, वो मकान भी नहीं बनता। ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये वर्कर जानता है जो खान के साथ 25 साल खड़ा रहे कि खान साहब एक ईमानदार, ऑनेस्ट, कमिटेड आदमी है। और बलूचिस्तान इंशाल्लाह कराची पे आपने देखा जो हालात, और इंशाल्लाह बलूचिस्तान पे जो कि बहुत नज़दीक है पीएम साहब की दिल का, इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जो इनकी ज़ाहिर है बलूचिस्तान में ये नहीं कहूँगा कि महरूमियाँ नहीं हैं, इंशाल्लाह ताला यही वो दौर होगा जिसमें इंशाल्लाह बलूचिस्तान की हम महरूमियाँ दूर करेंगे इंशाल्लाह। सूबाई की आदत है या बलूचिस्तान की कारकुनान है, उनकी जानिब से कहा जाता है उसमें पीटीआई इत्यादि है मगर नजरअंदाज किया जा रहा है जी। क्या मरकजी सतह पर कोई इस तरह का लायमल बनाएंगे कि जो बलूचिस्तान की क़यादत या कारकुनान है उनकी मायूसी को किस तरह दूर करेंगे? और सूबाई क़यादत की जो है ना इस वक्त तकसीम नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपने सवाल की क्या, देखें बिल्कुल मैं मानता हूँ, शायद हमारे गवर्नमेंट में कुछ बैठे लोग ना मानते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमने इनके साथ इलाज किया, हम इनके साथ इनके अलायंस में आए हैं। ये इन चीफ मिनिस्टर साहब का काम है कि हमारे वर्कर का ध्यान रखें, क्योंकि हम इन्हीं के वोटों से हमारे एमएनए एमपीएस बने हैं और वही एमपीएस एमएनए आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका भी काम है कि इनको सपोर्ट करें। ये नहीं हो सकता कि इनका वो सपोर्ट ना करें। ये बात अभी इंशाल्लाह ताला मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं, उसमें मैंने सुनी है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसके ऊपर जब आप पैकेज दें या कुछ भी दें तो ये बात करें चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप हमारे वर्कर्स का उतना ही ख्याल रखें जितना बाकी लोगों का रखते हैं, क्योंकि हमने आपको सपोर्ट करके चीफ मिनिस्टर बनाया। जो एपीसी थी उसमें ये कहा गया कि अगले माह से तहरीक शुरू की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक बहुत बड़ी रोडों पर जो तहरीक चलाई थी। आप क्या समझते हैं दोनों तहरीकों में क्या फर्क हो गया? क्या वो देखें, हमारी तहरीक वर्कर की तहरीक थी, ये मुफाद और औलाद की तहरीक है। ये मुफादात की पार्टियां और औलाद की पार्टियां हैं।
ہو جائے تو مسائل بہت زیادہ ہیں. اچھا کہنے کو تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور خاص طور پہ ونگس ہمارے ونگس کو بھی کافی مسائل ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو پارٹی کے ایشوز ہیں اور کیبنٹ کے ایشوز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. دوسرا ہم جو اقتدار میں ہیں تو لوگوں کو کافی شکوہ بھی رہتا ہے اور گلا بھی رہتا ہے کہ ہمارے کام نہیں ہوتے ہیں, ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے. ایم این اے ہماری سنتے نہیں ہیں. گورنر صاحب تو میرے خیال میں صرف ہمارا تو مطالبہ یہی ہوگا کہ گورنر صاحب ہی چینج ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ باقی میں کوئی گورنر آ جائے جس ہمارے وہ بنا جائے. اور باقی سارے پرسن اپنا اظہار کر چکے ہیں اور میں تھینکس کہوں گی کہ میں آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا بولنے کا. اور باقی ہم چاہیں گے کہ سینٹرل میں ہماری سنوائی ہو اور سینٹرل سے بھی ہمارا سپورٹ ہو. اور جو سینٹرل کے ہمارے حق بنتے اس وقت ہمارے جو ہم اقدار پہ ہیں ویسا ہو نہیں رہا ہے, ہماری ویسی سنوائی ہو نہیں رہی جیسے ہونا چاہیے. امید ہے کہ عامر کہانی صاحب آئے ہیں تو اسد صاحب بھی آئے تھے, سب آئے ہیں, سن کے چلے جاتے ہیں اور سب نوٹ کر کے جاتے ہیں. اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ڈائری پہ بھی ہو, ڈائری کے بعد یہ باقاعدہ میٹنگ پہ بھی ہو, اس پہ کیبنٹ بھی بیٹھے اور اس پہ ڈسکس بھی ہو اور ہمیں اس کا رزلٹ بھی ملے. تھینک یو, تھینک یو. بہت شکریہ. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ایم ڈی بیت المال کلثوم پانیزئی کو کہ وہ آئے اور مختصر انداز میں اپنا تقریر کرے. میڈم کلثوم پانیزئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے جو سینئر قیادت ہیں جو مرکز سے آئی ہیں, محمود کیانی صاحب اور ان کے ساتھ احمد خان نیازی صاحب, ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں اور ہمارے سینئر قیادت, ٹائم کا میں نہیں لے سکتی, سب کو ویلکم کہتی ہوں. اور ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گی, سب نے گلے شکوے کیے, سب نے باتیں کی. میں صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب پی ٹی آئی ہم لوگوں نے جوائن کی, ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور ہم پی ٹی آئی جو ہے ان کے تھرو ہم پاکستان میں تبدیلی لے کر آئیں گے. لیکن ایک بات میں واضح چلوں کہ جتنا 35 سال یا اس سے بھی زیادہ پاکستان کے ہر ادارے, چھوٹے بڑے جتنے بھی گورنمنٹ مطلب سارے ادارے تباہ تھے, وہاں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پتہ چلا یہاں پہ تبدیلی کی نہیں, یہاں پہ انقلاب کی ضرورت ہے, یہاں پہ چینج کی نہیں, یہاں پہ ریولیوشن کی ضرورت ہے. اور چینج اور ریولیوشن میں فرق اتنا ہے کہ چینج کے لیے اتنے زیادہ ایفرٹس نہیں کرنے پڑتے, ریولیوشن کے لیے بلڈ شیڈ چاہیے, سیکریفائس چاہیے. تو ہمیں اپنے حوصلے نہیں بس کرنے, ہمیں پھر بھی امید رکھنی ہے. خان صاحب انشاءاللہ ہار نہیں مانیں گے, جیسے انہوں نے 22 سال جدوجہد کی اور آگے بھی کرتے رہیں گے. اور اگر ہمارا سپورٹ رہا خان صاحب کے ساتھ تو یہ مشکل وقت بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. میں مانتی ہوں کہ مہنگائی ہے اور بہت سے مسئلے ہیں, اتنے خان صاحب کے سامنے چیلنجز ہیں کہ ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ فیس کر سکتے ہیں, اس کو سالو کر سکتے ہیں. ایک دم جو ہے وہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ جادو کی چڑی ہے وہ چلائے اور ایک دم جو ہے وہ ایک چینج آئے, ایک ریولیوشن آئے. میں پھر ایک بات ریمائنڈ کرتی چلوں کہ پاکستان کے ادارے جتنے تباہ تھے, یہ ملک قرضوں کے تلے دبے ہوا تھا اور کرپشن اتنی زیادہ تھی کہ یہاں پہ تبدیلی کی نہیں, یہاں پہ انقلاب کی ضرورت تھی. صرف یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ ہم چاہ رہے تھے ہم تبدیلی لے کر آئیں گے. تو میں پھر آپ جتنے بھی کارکن ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور اس مشکل حالات میں پھر بھی آپ لوگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. خطاب دینے جا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے جنرل سیکریٹری نصیب اللہ بٹنی صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے مختصر انداز میں اپنا تقریر کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے سیٹھی صدر اور ڈسٹرکٹ صدر سپلا خان کا کڑا اور سید بسم اللہ کا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور
मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। अमीर महमूद कियानी साहब, अहमद खान अजीज साहब, ज़ोएब अफरीदी साहब, इसके साथ आए हुए गुलाम बादशाह बिठनी साहब और उस्मान बिठनी साहब, सबके मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर अभी की आदत ज़्यादा हो रही है। और मैं तकरीबन 10 सितंबर को मैं गया था इस्लामाबाद। डॉक्टर मनीर का पैगाम मैंने जनरल सेक्रेटरी साहब को पहुंचाया कि बराए मेहरबानी आप बलूचिस्तान का दौरा कर लें, और उसने मुझे बताया कि मैं इंशाल्लाह इसी महीने में कर लूँगा। बड़ी मेहरबानी। ये पहला तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेंट्रल रीजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैयद ज़हूर आगा को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। आप सबकी भरपूर तालियों से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब आमिर महमूद कियानी साहब जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, और अहमद खान नियाजी साहब और उनके साथ तमाम टीम, चूँकि मैं भी उनके साथ वहाँ इस्लामाबाद से मैं भी था। उन्होंने जब ये कहा कि हम जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ आया, और हकीकत में उन्होंने 14-15 घंटे रास्ते के गुजारे, और फिर ज़ोम में कन्वेंशन की, फिर किला सैफुल्लाह में इसी तरह की, और यहाँ पहुँचे। मैं आपको अपनी तरफ से और अपने तमाम PTI टाइगर्स की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें कोई शक नहीं कि आप वो वाहिद सेक्रेटरी जनरल हैं अहमद खान नियाजी साहब के साथ जो आए और जिन्होंने तमाम रीजन्स में, आज देखता रहा, सारे जितने भी रीजन्स थे उनको बुला के उनमें डिस्ट्रिक्ट सदूर जो थे उनके साथ भी हाल अहवाल किया, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात जो उनके दिल में थे, जो उन्होंने इनके सामने पेश की और इनका इजहार किया। मैं उस पर, हमारे कारकुन हैं, जज्बाती हैं, मैं उनकी तरफ से भी आपसे आपको माजरत करता हूं कि ये हमारे कारकुन, बेशक इसमें कोई शक नहीं। 11 साल की मेहनत अगर इमरान खान ने 25 साल की है तो उनकी आधी जिंदगी में 11 साल हमने भी मेहनत की है। तो हमारी मेहनत को आप मद्देनजर रखते हुए हमारी इसको रायगाह नहीं जाने दें। बहुत शुक्रिया, आप सब दोस्तों को बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं लगता हूँ कि ये भी एक वर्कर रह चुका है। वो इसलिए अगर ये वर्कर नहीं होता और इनको पार्टी का गम नहीं होता तो वो आज बलूचिस्तान में नहीं होता इस वर्कर कन्वेंशन में। तो इसलिए मैं इसे खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनके साथ पार्टी का और इमरान खान और इस पार्टी के मंशूर का दर्द है कि वो आज आपके दरमियान बलूचिस्तान इनमें एक वर्कर कन्वेंशन में मौजूद है। जनाब आमिर महमूद कियानी साहब जैसे हमारे दोस्तों ने यहाँ बातें की है, ये हमें पता है कि आज आप इस पंडाल को देख रहे हो कि हमने इन दोस्तों को कैसे निकाला और कैसे यहाँ लेकर आए और आपके सामने बिठाए। ये अल्लाह को पता है और हमें पता है। चूँकि मैं एक सिटी प्रेसिडेंट हूँ और जो लोगों के मसाइल हैं, इससे पहले जब हम इनके पास जाते थे इनको कहते ये थे, नजरियाती बुनियादों पे इसने सियासी शऊर उजागर किया कि आपको बुनियादी हकूक़ मिलेंगे। आज बलूचिस्तान में 21वीं सदी है, हमारे आवाम पानी की एक बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ये वो बलूचिस्तान है जिससे रोजाना 100 के हिसाब से रिकॉर्डिंग की गाड़ियां मौजूदा हुकूमत के साथ बलूचिस्तान में, लेकिन हमारे भी MPs हैं, हमारे भी मिनिस्टर्स हैं। आप क्यों एक कुव्वत नहीं बनते, एक ताकत नहीं बनते, आप क्यों यूनाइटेड नहीं होते? ऐसी की तैसी कोई आपका काम ना करे।
आप खड़े हो जाएं, एक जगह हो जाएं, आप जाएं, आपके एमपी कोई अपनी शख्सियत से नहीं आया हुआ, खान के वोट से आया हुआ है, वोट खान को मिला है, प्राइम मिनिस्टर को मिला है, किसी की कोई हैसियत नहीं है मां सिवाय इमरान खान के। हर बंदा जो जीत कर आया है वो पीटीआई के टिकट से जीत कर आया हुआ है, इमरान खान के नाम से जीत के आया, वो पाबंद है पीटीआई के वर्कर का, पीटीआई के टाइगर का, पीटीआई के सिपाही का काम करने का। और जो चाहे काम होगा इंशाअल्लाह व ताला वो जरूर होगा, हमारी क़यादत आई हुई है। मेरा एक तजवीज़ है सजे से कि जितने हमारे मिनिस्टर हैं, एमपीएज हैं, ये महीने में एक बार दरबार लगाएं, जैसे मौजूदा साबका हुकूमतों में बलूचिस्तान में लगता था, जैसे आईजी साहब लगाते हैं, आईजीएफसी लगाते हैं, इसी तरह हमारे एमपीएस हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, दरबार लगाए जो हमारे पीटीआई के वर्कर्स हैं, इनके मसाइल सुने और इनके मसाइल जायज मसाइल हल करें। ये पाबंद है, ये आपके पाबंद है, ये आपके बोर्ड से आए हुए हैं, आप दिल मत फेंके। आप बना दिए लेकिन दीन की समझ किसी को नहीं है। हम भी ज़माने जहलियत में है, दीन की तरफ आए तो आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। कुरान शरीफ ज़ाब्ता है, याद है क़यामत तक के लिए, आपके लिए कुरान शरीफ। फिर उसके बाद 2018 का इलेक्शन सूबाई से मैं और कौमी से मीर ताज मोहम्मद वो खड़े हुए। खान साहब को हमेशा कहते थे एक दिन अच्छा दिन आएगा। तो साथियों, उस गवर्नमेंट में बेहतरीन माशी पॉलिसी, बेहतरीन खारजा पॉलिसी, बेहतरीन तालीमी पॉलिसी, बेहतरीन आपका सेहत की पॉलिसी, बेहतरीन वो जो मैं मुख्तसर करूँगा, ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, लोगों को पता भी चले कि हमने क्या किया। और आपका जो है बेरोजगारी, इस पर लोग डोनाल्ड ट्रंप की या क्वीन एलिजाबेथ की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि 70 साल में हम अपने आप को इधर ले आए हैं। तो अपने आप को देखे, जहाद अपने अंदर से शुरू होता है। दूसरों पे उंगलियां उठाने के बजाय पहले अपने पे उंगली उठाए कि मैं किस जगह गलत हूं, किस किस्म की चीज ढूंढ रहा हूं। आम लोग एक लीडर को फॉलो कर रहे हैं, वो है इमरान खान। सब उसको मानते हैं, सब उसके पीछे खड़े होते हैं। हमें खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा इस दौर में लीडर दिया जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलता है। हमारी खुशकिस्मती है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। आजकल वो एक बात करते हैं कि मैंने इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना है। रियासत मदीना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का भेजे गए थे या आए थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक पूरा टास्क है कि यार उन्होंने वोट दिए तो अपने इलाके के पास जाओ, किसी की खैरियत पूछने, किसी की दवा देने, किसी को मसले हल करने के लिए। आमिर महमूद कियानी वो शख्सियत है जिन्होंने अपना हल्का वोटर छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तंजीमी ढांचे के लिए इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचे। उनके लिए क्लिपिंग तो होनी चाहिए। कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको ओश की जरूरत होती है, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको ओश की जरूरत होती है, लेकिन तारीख बदलने के लिए आपको जोश की जरूरत होती है। और अमीर महमूद कियानी ने तारीख बदल दी, जिन्होंने जो किला सैफुल्लाह, कोयटा और पूरे बलूचिस्तान का दौरा किया। क्लिपिंग होनी चाहिए अमीर महमूद कियानी के लिए। एक छोटा सा वाकया एक लाइन में, 2012 का जलसा है, कराची का बहुत बड़ा जलसा है। खान साहब स्टेज पे खड़े हो जाते हैं, मखदूम जावेद हाशमी सारे लीडर है। खान साहब कहता है मैं तमाम जलसे में एक लड़के को खुश आमदीद कहता हूँ। सब लोग हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं वो कौन है? कहते हैं वो सरफराज लड़का जो अपना मोबाइल बेच के हैदराबाद से कराची है, मैं उसको वेलकम कहता हूँ। अमीर महमूद कियानी भी यही है, पार्लियामेंट को चेक कर आप लोगों के दरमियान बैठे हैं। क्लिपिंग होनी चाहिए अमीर महमूद कियानी को। खड़े होकर आपने इस्तकबाल करना है, खड़े होकर आपने इस्तकबाल करना है। हमारे और आप सबके अजीज शख्सियत खड़े हो जाए, आप सारे दोस्त खड़े हो जाए, सारे दोस्त खड़े हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले तो मैं
तमाम मुंतज़मीन हाज़रीन, अपनी बहनों का, अपनी टीम का, और जिन लोगों ने ये हमारे जो सिटी के तंजीम है उसका, प्रोविंशियल जो हमारी रीजन की टीम है उसका, तमाम लोग जो मेरे साथ आए हैं, अहमद खान नियाज़ी साहब, अली, जो भी सब मेरे साथ मेरे भाई आए हैं, सबका एक ही जहन है, सब ने वही सफ़र किया, सब ने वही तकलीफों से गुजरे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमने मकसद ही ये था आने का कि आपने जो गिले शिकवे किए उनमें से कोई तकलीफ नहीं, हमने उससे सीखा है। आपने जो बातें की, हम आए इसलिए थे कि आपका दिल हल्का करें, आपके दिल पे जो बोझ है वो कम होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपने, ये जो लड़ाई है ना जिंदगी में, ये लड़ाई हमेशा चलती है, ये ख़त्म नहीं होती। ये एक शेर मैं आपको खान साहब की सोच के मुताबिक बताना चाहता हूँ, वो ये है, मेरी हिम्मतें भी झुकी नहीं, मेरा शौक अब भी बुलंद है, मुझे हार जीत से क्या गरज, मेरी जंग थी मैं लड़ा किया। अब जंग लड़ते हैं, जब तक लड़ते हैं जब तक अल्लाह ने आपको दम दिया हुआ है। ये मायूसी गुनाह है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये गुनाह है। मैं आपको बड़े वसूख से, बड़े यकीन से, बड़े एतमाद से ये कह रहा हूँ, मैंने 25 साल इमरान खान को लड़ते हुए देखा है, हौसले के साथ, जुर्रत के साथ। आपको तो उससे इंस्पायर होना चाहिए, आपको तो उसकी तरफ देखना चाहिए। जितनी तकलीफ इमरान खान ने बर्दाश्त किया, हम में से मेरा ख्याल है कोई एक बंदा भी इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कुछ था। हम जो लड़ते हैं ना कि हमारे पास कुछ हो, लड़ते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, लड़ते हैं कि हमें वो भी मिल जाए, ज्यादा ना सही, कुछ छोटी चीजें हो, लेकिन वो तो सब कुछ छोड़ के आया था। शौहरत थी, इज्जत थी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, खाने पीने का मसला नहीं है, दुनिया की इंटरनेशनल शोहरत है। लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं, मैंने अपने पाकिस्तानी लोगों का, मेरे अपने बच्चों का, उसके बाद मेरे पैगंबरों की और मोमिन की है। तो फिर अगर आप सही मोमिन है तो आपको इज्जत क्यों नहीं मिल रही? आपको किस किस्म की इज्जत आप ढूंढ रहे हैं? आप कभी अपने आप को फिर देखें कि आप गलत इज्जत ढूंढ रहे हैं। अगर आपको गेट पे या आपको किसी डीसी ने सही तरीके से बात नहीं की, तो अगर इस पे आप इज्जत आपकी खराब हो गई तो आप गलत इज्जत के पीछे चल रहे हैं। आप मुसलमान है, सही इज्जत ढूंढे। अल्लाह, दूसरी बात आप लोग कह रहे हैं मायूसी की, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ में फरमाते हैं। ये आयतें जाके ढूंढे, कुरान शरीफ पढ़ते होंगे आप लोग, हदीसें पढ़ते होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, अपनी औलाद की मुफलसी के डर से कत्ल मत करो। पढ़िए ये आयत कभी, अपनी औलाद की मुफलसी के डर से कत्ल मत करो, क्योंकि उनको भी मैं पालता हूँ और तुम्हें भी मैं पालता हूँ। तो फिर मायूसी किस चीज की है? आप अहमद खान नियाजी या इमरान खान से क्या चीज ढूंढ रहे हैं? आप गलत दरवाजे खड़का रहे हैं, आप सही दरवाजा ही नहीं खड़का रहे, आपको इज्जत नहीं मिल रही, आपको मायूसी हो रही है क्योंकि आप गलत दरवाजे पे खड़े हैं। तो हम लोग सड़कों पे आके ठीक है अपना हक मांगना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मांग रहे। अगर 70 साल में हमारा मुल्क इधर आ गया तो हमारी गलती है, कुछ डोनाल्ड ट्रंप की गलती नहीं है कि हम लोग आज यहाँ पे एक दूसरे के सर तोड़ रहे हैं, एक दूसरे की अमदाते खींच रहे हैं। कोई डोनाल्ड ट्रंप की या क्वीन एलिजाबेथ की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि 70 साल में हम अपने आप को इधर ले आए हैं। तो अपने आप को देखे, जहाद अपने अंदर से शुरू होता है। दूसरों पे उंगलियां उठाने के बजाय पहले अपने पे उंगली उठाए कि मैं किस जगह गलत हूं, किस किस्म की चीज ढूंढ रहा हूं। आम लोग एक लीडर को फॉलो कर रहे हैं, वो है इमरान खान। सब उसको मानते हैं, सब उसके पीछे खड़े होते हैं। हमें खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा इस दौर में लीडर दिया जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलता है। हमारी खुशकिस्मती है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। आजकल वो एक बात करते हैं कि मैंने इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना है। रियासत मदीना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का भेजे गए थे या आए थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक पूरा टास्क दिया। तो उस टाइम उस मक्का में या अरब में कहते थे ज़माने जहालियत थी। तो आपको पता है ज़माने जहालियत क्या है? क्या जो मक्का के लोग थे वो टांगों पे नहीं चलते थे, हाथों पे चलते थे? जाहिल है ये। क्या वो हाथों से नहीं खाते थे, हाथों से खाते थे कि भाई वो जाहिल थे। 25 साल की मेहरमियाँ दूर कराए। अगर हमारी इस तरह मेहरमा रही तो हम कहाँ चले जाएं? हम किससे गिला करें? मैं आपको ना कहूँ, आप मुझे ना कहें, तो मैं कहाँ जाऊँ और किससे फरियाद करूँ? इस शैतान के पास जाऊँ, शैतान को कहूँ?
शैतान ने तो हमें भगा दी है। शैतान कहता है जाओ अपना काम करो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्यानी साहब सियासतदान, ये सियासतदान है जो चोरों को ला के एक कटहरे में खड़ा कर दिया और सारे चोर एक हो गए। दोस्तों, बातें तो बहुत सी होती रहेगी, लेकिन थोड़ा आपको बताता चलूं कि कल